Assalamu alaikum. Queen Elizabeth Commonwealth Scholarships second cycle has been started. So to apply for Commonwealth scholarships, there is no application fee and there is no requirement for IELTS also. So to apply for Commonwealth scholarships, you will just go to Google and just type here scholarshipsguides.com. So at the top we see scholarships portion where we see different type of scholarships. At the end here is Commonwealth scholarships. I will click over here. तो यहाँ पे हमें स्कॉलरशिप की पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसका, या पढ़ लेना। सो एलिजिबल कंट्रीज़ में ये पूरे कंट्रीज़ की लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है जो कि एलिजिबल हैं। इनमें एशिया में बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ एलिजिबल हैं। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये लिस्ट है, पासपोर्ट वगैरह ये भी। और स्कॉलरशिप कवरेज में ये फुल कवर करती है, आपकी ट्यूशन फीस को, लिविंग अलाउंस भी देती है और राउंड ट्रिप टिकट्स भी देती है। So for application process we just have to click over here. Okay, it will take us to official website of Commonwealth Universities Association. So here we can see some information about the scholarship, what this scholarship cover. Here are the benefits that are mentioned. Okay, so how to apply? Here is the process to apply for this scholarship. So if we go downward, here different universities list and programs are mentioned in which we can apply for this scholarship. So for University of South Pacific, these programs are mentioned. For different universities there are different programs. Okay, you can check your related program in the universities mentioned. Also for checking entry requirements, you just have to click on the university's website and you can see the requirements by certain universities. So to apply for these scholarships, we just have to click on apply for QECS. I will click on here. So it will ask us to log in. If we already have its account, then we can fill our details, but I will make a new account. So I will click on get started. I will fill this information to create my account. So if you are working, then you can select your employer, otherwise you can leave it empty. Okay, so user with username has been created. So they have sent us an email to verify our email. You have successfully validated your email address. Okay, I will click on login. So it will ask me to create a password. So I will just create a password now. Then I will click on update password. Okay, your account detail has been activated successfully. So here is some information in which eligibility requirements are mentioned. So after reading this, I will click on next page.
Are you a citizen? Do you have a refugee? Okay, so if you are a Commonwealth country, then you will click on yes. So list is given here, countries list. You can see your country name here. So here is a list of countries that are eligible. Okay, I will click on yes. Which country do you have citizenship? I will click Pakistan. Do you have a dual nationality? No. Have you already completed a degree? Of course, you will have to be completed an undergraduate degree to apply for master's program. Okay, which university you want to apply for? As I selected University of South Pacific because it is offering my research program. So I will click on this and then I will click on next page. इसके बाद आपको पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये मेंशन करनी है। तो आपका टाइटल क्या है, मिस्टर है तो मिस्टर क्लिक कर दें। उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने इधर मेंशन करनी है अपनी। उसके बाद ईयर मेंशन कर देना, सही हो गया। उसके बाद जेंडर, पासपोर्ट की आपने पिक्चर अपलोड करनी है इधर, सही। उसके बाद आपने उन्हें अपलोड पर क्लिक कर देना। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने 00 से शुरू करके लिखना है, जो भी है आपका वो मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल लोकेशन, परमानेंट एड्रेस इधर आपने देना है। मैं मुल्तान जो भी है लिख देता हूँ इधर। ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मेंशन योर प्रोविंस। सो माय प्रोविंस इज, फर्स्ट I will have to select my country, then I will have to select my province, then zip code. Okay, do you have a corresponding address that is different from permanent address? No. Then I will click on next page. So here we have to enter our qualifications. We will begin with the most recent one. So I will first fill for bachelor's. You have to start mention the start date and end date. इसके बाद आपने कंट्री लिखना है जिस कंट्री से आपने की है। उसके बाद नेम लिखना है, सब्जेक्ट, डिग्री टाइप जो भी थी आपकी, बैचलर ऑफ साइंस थी तो बैचलर ऑफ साइंस लिख देंगे, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनल ग्रेड आपका क्या था, ABC जो भी है वो मेंशन कर देना। उसके बाद आपने इधर इंटरमीडिएट की देनी है, फिर उसके बाद मैट्रिक की देनी है। इंटरमीडिएट की स्टार्ट डेट जो है आपकी वो इधर लिख देंगे। उसके बाद आपने उसकी फाइनल डेट दे देनी है। सही हो गया। इस तरह ये आपने मैट्रिक की भी इधर मेंशन करनी है। उसके बाद अकेडमिक सर्टिफिकेट्स में इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। उसके अलावा बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री, ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो मैं कर देता हूँ ये फाइल्स अपलोड। ओके, सो आई हैव अपलोडेड दीज डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपका अगर कोई है वर्क एक्सपीरियंस तो आपने इधर फिल करना है। मोस्ट रिसेंट जो है वो आपने पहले लिखना है। उसके बाद दूसरा वाला अगर पुराना वाला है कोई एक्सपीरियंस तो वो आपने मेंशन कर देना है। ये मेन रोल्स एंड एक्टिविटीज़ में आपके कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप इधर मेंशन कर दोगे। सही हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कोर्स डिटेल्स, अब जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है उसमें आप कौन से, वो पूछ रहा है कौन सा कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ।
वो कहता है आपने पहले से यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ, तो मैं नो पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्टडी प्लान लिखना है जिसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। मैं कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ इधर। तो आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इधर फिल करना है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड पोस्ट स्टडी ओवर रीच, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो स्टडी है उनमें से कौन सा गोल इधर से पूरा हो रहा है, तो मेरी क्योंकि इंडस्ट्री इनोवेशन वगैरह के मुताबिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हैव यू प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू द, आपकी जो जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया वो किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करेगा, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहता है एक्सप्लेन हाउ यू हैव डेवलप्ड प्रोफेशनल नेटवर्क्स। ये सारी चीज़ें आपने इधर से लिख देनी है। ये 200 to 400 वर्ड्स होने चाहिए इसके। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। क्यों मैंने क्योंकि कम लिखे हैं तो इसलिए वो कह रहा है कि ज़्यादा होना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा मैं। 1 2 और 3, 1 में कम है अभी भी, 2 में भी कम है, 3 में भी कम है। तो ये आपने, मैं तो वैसे मेंशन कर रहा हूँ, आपने लिख लेना है अपने फील्ड के मुताबिक। 2 और 3 में हो गया, अभी भी कम है, ज़्यादा हो गया आप। सही हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा। ओके। उसके बाद वो कहते हैं आपने रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करने हैं, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेंशन है कि हेड डेट पे जो यूनिवर्सिटी का लेटर हेड हो ना, उसके ऊपर आपने वो प्रिंट होना चाहिए आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है आप प्रोफेसर से लोगे। तो सबसे पहले डियर सर या मैडम ये लिखा होना चाहिए, और उसके अलावा एप्लीकेंट्स कैपेसिटी टू बेनिफिट फ्रॉम, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए आपके रिकमेंडेशन लेटर में जो आपने अपने प्रोफेसर से बनवाना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस की आपने जिससे वो लिया हुआ है रिकमेंडेशन लेटर, उनकी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद उनका जो डेजिग्नेशन है, कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर मेंशन कर दोगे, ठीक हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ओके। उसके बाद आपने वो जो रिकमेंडेशन लेटर है वो इधर अपलोड कर देना जो आप लोगों ने लिए है उनसे। ये 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। ये अपलोड कर देता हूँ दोनों। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूँगा। ओके, सो हियर इज़ प्राइवेसी स्टेटमेंट वी हैव टू रीड। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नेम यू हैव टू राइट हियर, कंप्लीट नेम और है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना। प्लीज़ इंडिकेट हाउ यू फर्स्ट हेard। उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, तो उसके बारे में आपने लिखना है। मैं सोशल मीडिया पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेसिफाई फेसबुक, नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये समरी आ गई जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया है। इसको सारे को पढ़ने के बाद हमने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो यही था एप्लीकेशन प्रोसेस। अल्लाह हाफिज़।